Okay, this is part 2 of the solution of NEET 2023 chemistry paper. Today I'll try to move little bit faster because I plan a lot of the things for today's video. Hello guys, I'm Dr. Kamarul Monir and welcome to my channel Chemistry through Problem Solving. Just have a look of the question paper number 51. Okay, which of the following reaction will not give primary amine as the product? See, they have give 4 options and the question asks that which will not give the primary amine. That means among these 4 options there is a reaction which will give 2 degree amine. It can be give 3 degree amine also, but 3 option will provide you the primary amine. Just have the look. The reagent they have used each and every reaction, they are very simple because as a NEET student, in the final year student, I can say that you have lot of knowledge, so you can easily eliminate this option. See, this is the Br2KOH, which is known as this reagent used for a Hofmann degradation. Okay, and see, this is the amide. So as in the case of Hofmann degradation, this carbonyl group will eliminate and the product will given like CH3. Okay, just wait. Yeah, this will be the product. See, after using the Br2KOH, this group will eliminate and the product will be give CH3NH2. So as you know, this is a primary amine. Similarly, if you use lithium aluminum hydride and in this substrate, that is methyl nitrile, this will give you again the primary amine. The product will be the CH3CH2NH2. I am not going in the detail of the reaction because if I explain each and everything, then I think it will be very lengthy. Then my every plan will be in a mess, you know. So these are the just a basic reaction. So just see what are the product. Okay. Now if we see the option number 3, actually this is the answer. So I will explain this answer at the last. And if you see the option number 4, then again they use lithium aluminum hydride. Actually lithium aluminum hydride is a very interesting reagent. If in case of if you it's a reducing agent. In most of the case it used like if you use lithium aluminum hydride in the substrate like aldehyde, then ये आपको क्या देगा, अल्कोहल देगा, CH3CH2OH. सिमिलरली ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपने अगर एसिड या एस्टर भी यूज करोगे तो सिमिलरली सेम थिंग ये प्रोवाइड करेगा आपको. फाइनल प्रोडक्ट इज द एल्कोहल. बट इन केस ऑफ एमाइड, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर मान लीजिए ये एमाइड है ना, इसमें अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर यूज करोगे तो ये आपको देगा CH3CH2NH2. देखिए ये भी प्राइमरी एमिन ही है. ओके, सो ये क्या ऑप्शन बचेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3. सो डेफिनेटली इट विल गिव एनीथिंग अदर देन प्राइमरी एमिन. ठीक है, अब ये देगा क्या, ये देखिए इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे CH3N ट्रिपल बॉन्ड C. ए एक्चुअली ब्रेक करेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है. इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH4, ये आपको देगा CH3NH CH3. ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन. तो ये 2 डिग्री अमीन जो है ये आपका होगा आंसर. अब जो ऑप्शन नंबर 4 का एक ऑप्शन नंबर 4 पे जो दिया हुआ है ना एमाइड, अब उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आपने ऐसे प्राइमरी ये इस टाइप का एमाइड पे यूज करेंगे LH, तो आपको दिखाया कि ये आपको ऐसा बनेगा CH2NH2 बनेगा. ठीक है ना. अगर ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपने AnR2, ठीक है, इसी पे यूज करेंगे LH, तो बॉस यहाँ पे आपको ये जो एमिन बना, ऐसा एमिन बनेगा नहीं. यहाँ पे ये जो कार्बोनिल है ना, ये रिड्यूस होकर CH2 बनेगा नहीं. इस केस में क्या होगा, ये पूरा जो फ्रैगमेंट है ये निकल जाएगा, निकल के फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आपका CH3CH2OH बनेगा. ठीक है, वो मैकेनिज्म है अलग सा,
तो हम मैं इधर इस वीडियो में मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, और बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेट में ना डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करता है। लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, इस प्रोडक्ट का इस नंबर 51 का जो क्वेश्चन है, इसके आंसर हो गया आपका ये क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे आज, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आज कवर करना है हमको। नेक्स्ट आई गेस या आई गॉट द ऑप्शन नंबर 58। ओके, जस्ट हैव ए लुक। द गिवन कॉम्पाउंड, दिस इज द गिवन कॉम्पाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बस यहाँ पे आपको पूछा है ये जो एक्स मतलब हेलाइड, ठीक है ना। अब ये जो हेलाइड है ये किस टाइप का हेलाइड है। एक नंबर ऑप्शन में पूछा आपको बेंजाइलिक हेलाइड, दूसरा पे एराइल हेलाइड, तीसरे एलाइलिक हेलाइड और विनाइलिक हेलाइड। ओके, तो हमको क्या करना है, ये बस सिंपल फंडा है। अगर आपको पता है ये चारों चीज़ें है क्या, तो आपको ये सवाल आ जाएगा। अगर नहीं पता तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम आई कैन से दिस इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन। इफ़ यू नो द फैक्ट्स देन ओनली यू विल एबल टू आंसर, इफ़ यू डोंट नो द फैक्ट्स देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। व्हाट इज बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड कुछ भी नहीं, ये जो पोजीशन मान लीजिए इसका नाम है टोलुइन, ठीक है ना। अभी टोलुइन का ये जो कार्बन है, टोलुइन का ये जो कार्बन है भाई, ये कार्बन का कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप आप डालो तो ये हो जाएगा आपका बेंजाइलिक पोजीशन। तो अगर इस टाइप का कोई हैलाइड है तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड मतलब बेंजीन है, इसके बाद में जो CH2 ग्रुप है उसमें जो हैलाइड अटैच है उसको बोलेंगे बेंजाइलिक। ओके, तो सिमिलर जाहिर सी बात है, इसमें तो है नहीं, तो ये बेंजाइलिक ऑप्शन वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट हो गया एराइल हैलाइड। अब एराइल देखिए, ये हो गया आपका बेंजीन, इट्स एरोमेटिक। एनी एरोमेटिक कंपाउंड, एनी हैलाइड अटैच विथ एरोमेटिक रिंग, just keep this sentence in mind, that any halide attached with aromatic ring is called aryl halide. अब देखिए, एज ए होल द compound is aromatic because there is a aromatic component in this compound, so the compound as a whole is aromatic, but this halide will not call as aromatic aryl halide। सिंपल सा बात है, बिकॉज ये जो हेलोजन है ये रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। सो ये वाला जो ऑप्शन है एराइल हैलाइड, ये वाला ऑप्शन भी ऑप्ट आउट हो जाता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे हम एराइल हैलाइड। यहाँ पे अगर बेंजीन है तो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, और कुछ और है तो कुछ और हैलाइड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए एलाइलिक, और बचा क्या, एलाइलिक और विनाइलिक। अब देखिए इस टाइप का अगर सिस्टम है, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मान लीजिए यहाँ पे CH3। ओके, अगर ये जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो कार्बन है यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको बोलेंगे विनाइलिक पोजीशन। और इसको छोड़ के नेक्स्ट कार्बन, मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी अटैच हो उसको उसको बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। ओके, तो अगर हेलोजन अगर इस तरह होता, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, मान लीजिए इस कार्बन पे X है तो इसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ओके, क्योंकि ये है विनाइल पोजीशन इन दोनों। अगर ये हेलोजन अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन CH2 यहाँ पे अटैच है, तो क्योंकि ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं क्या, एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पे जो हैलाइड है तो इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। देखिए अगर ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो इस पोर्शन में आपको देखिए ये वाला जो पोजीशन है ये है आपका विनाइल सॉरी एलाइलिक पोजीशन। सो दिस हैलोजन वी विल कॉल्ड एज एलाइलिक हैलाइड। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जो आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के दिया है। ओके, वो तो आपको बस सोर्स दिखा देंगे एनसीईआरटी खोल के कि कौन सा पेज में कैसे दिया हुआ है, सो दैट विल हेल्प टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एक्चुअली। ओके, बाकी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ आपको इनपुट दे सकता हूँ जो आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा, विल एक्सप्लेन दैट थिंग इन डिटेल। और बाकी आई होप आज पूरा ऑर्गेनिक पोर्शन कवर करके बाकी जो फिजिकल इनऑर्गेनिक पोर्शन जो बचेगा ना, नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में हमको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और एक चीज मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, अगर देखिए कुछ एग्जाम का कुछ थंब रूल्स होता है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो एंड यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, तो द थंब रूल्स इज दैट फॉर दिस नीट preparation you have to go through the NCERT from first page to last page,
अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके, क्योंकि 2024 में शायद काफी चीजें जो निकल निकल गया है एनसीईआरटी से भी, मतलब वो आपका नेट सिलेबस से निकल गया कुछ चीजें, तो उसको छोड़ के बाकी चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो प्लीज स्टॉप दिस वीडियो एंड रीड दैट बुक, क्योंकि ये मेरा एक्सप्लेनेशन जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको हेल्प करने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये आपका टाइम पास ही हो रहा है, सिर्फ ये वाला वीडियो नहीं है, कहीं पे भी आप वीडियो देखोगे तो ये आपको हेल्प करेगा नहीं, बिकॉज दिस इज द थंब रूल। हो सकता है कुछ टॉपर आपको कहेंगे कि भाई मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं, एडवांस लेवल का किताब पढ़ के मैं क्लियर कर दिया, तो दैट आर द एक्सेप्शन। आप एक्सेप्शन पे मत जाइए, कुछ आप थंब रूल को फॉलो कीजिए, प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी, अदरवाइज ये बहुत दिक्कत फेस करने वाले हो आप। क्योंकि आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से उठा उठा के पूछा है, अगर एनसीईआरटी ना पढ़ेंगे तो वो कहीं से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा, मैंने बहुत पढ़ लिया केमिस्ट्री, फिर भी अगर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा है कि जो मेरा दिमाग में है नहीं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर उस क्वेश्चन से आप मुझे जज नहीं कर सकते कि मुझे कितना केमिस्ट्री आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो आई थिंक माई पॉइंट इज वेरी क्लियर एंड you guys are very intelligent to understand each and everything, so please go through the NCERT first. Okay, okay, let's discuss question number 59। देखिए यहाँ पे सिंपल सा रिएजेंट जो कि बहुत ही एकदम टेक्स्ट बुक से, कई भी टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडवेज रिएक्शन। लेकिन देखिए केमिस्ट्री का खूबी ऐसा है, स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता है सैंडवेज रिएक्शन क्या है? कि ये जो आपको क्या बोलते हैं इसको, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके साथ आपको कॉपर ब्रोमाइड और HBr ऐड करोगे तो Br ऐड होगा, CuCN KCN ऐड करोगे तो साइनाइड ऐड होगा, HCl ऐड, ये कॉपर सॉल्ट के साथ HCl ऐड करोगे तो क्लोराइड ऐड होगा। ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही है। लेकिन आप ठीक देखिए, ये 2 नंबर एजेंट पे कुछ और घुसा दिया, ओके, एंड 3 नंबर पे कुछ और दे दिया, और फिर आपको कर दिया चेंज। अगर ये आंसर आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ईच एंड एवरी रिएजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड व्हाट इट गिव्स, देन ओनली यू विल एबल टू आंसर। तो ये यही है केमिस्ट्री। अगर हो सकता यहाँ पे तो ठीक है, चलिए सिंपल सिंपल चीजें दे दिया। अगर पेपर सेटर का मन ऐसा हुआ कि थोड़ा चलो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, इधर उधर जोड़ के कुछ और बना देता हूँ, तो बन जाएगा भाई, और ये आपको दिक्कत करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉलेज आपका थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, देन ओनली यू विल एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज ऐसा है कि ये होता बहुत इजी है, अगर आपको सारे रिएजेंट के साथ आप खेल सकते हो, देन यू विल बी ए मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये सेम चीजें इन ऑर्गेनिक या फिजिकल में होता नहीं है, वो सीधा सीधा दे देता है आपको, बुक से उठा के आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा आसान। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या पूछा किया इसने। तो फर्स्ट रिएजेंट वी नो कि यहाँ पे क्या होगा आपका, इन प्रेजेंस ऑफ CuBr2 एंड HBr, तो यहाँ पे आप बनेगा आपका Br। देखिए अब क्या है नेक्स्ट, 2 नंबर पे कौन सा दिया है, Br2 एंड Mg, सॉरी मैग्नीशियम एंड ड्राई। ये भी बहुत सिंपल है, ये आपको पता है मैग्नीशियम ड्राई ईथर देने में क्या होता है। ठीक है ना, ये बनेगा आपका PHMgBr, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रीन नर्ड। अब ग्रीन नर्ड का यूज भी आपको बहुत सारा पता है कि एक एक सबस्ट्रेट में, अलग अलग सबस्ट्रेट में ये अलग अलग रिएक्शन करता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, 3 नंबर पे क्या, H2O। उसका मतलब इसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा, कुछ नहीं, ये बस ये हो गया आपका पीएच, ये हो गया आपका MgBr। तो ये इसको माइनस और इसको, ये बॉन्ड को अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो पीएच माइनस एंड MgBr प्लस ऐसा होता है। ठीक है, अगर ये माइनस है मतलब हाईली बेसिक है, ओके, तो इसका बस ये ढूंढता रहता है कहाँ पे आपको एसिडिक प्रोटोन मिलेगा, ये इसका पहला फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है। कहाँ पे अगर एसिडिक प्रोटोन मिल गया तो दे विल टेक अप एसिडिक प्रोटोन फास्ट, अगर नहीं मिला दे वो कुछ और सोचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एसिडिक प्रोटोन तो है मेरे पास। ठीक है ना, पीएच MgB एसिडिक प्रोटोन हमारे पास कहाँ है, ये देखो पानी पे है। ओके, दिस इज H प्लस, वो H माइनस। ओके, तो ये एसिडिक प्रोटोन अब क्या करेगा, ये पीएच माइनस इधर से ये एसिडिक प्रोटोन को ले लेगा ऐसा, और ये निकाल देगा, तो बनेगा क्या, पीएच यानी क्या, ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, और ये जो OH वाला पोर्शन, ये हमको पता है कि ये Mg, ये प्लस वाला पोर्शन है, ये माइनस वाला पोर्शन है, दोनों ऐड होके MgOH Br। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेंजीनिंग है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका 2 नंबर। ठीक है, टू इज द आंसर। अब देखिए ये जो, लेकिन मैं इसके रिलेटेड कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये आपका जो सैंडवाइच रिएक्शन है ना, ये सैंडवाइच रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मैं क्या बोला कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने लिया सिंपल था क्या,
एक डाइबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसने बस ये तीनों रिएजेंट के साथ कॉम्बिनेशन दे के आपको एक प्रोडक्ट जो कि ये मांगा है 4 ऑप्शन के साथ। अभी हो सकता है कि पेपर सेटर का कुछ भी मन किया, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है भाई, इसको यूज करके बहुत सारी चीजें बन सकता है। तो हमको थोड़ा सा जैसे क्या बोलते हैं, हमारा जो केमिस्ट्री डिक्शनरी है ना, ये थोड़ा सा अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। अपग्रेड करना पड़ेगा मतलब इसके साथ क्या क्या रिएक्शन हो सकता है ये थोड़ा हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये पीएच एन सॉरी N2 प्लस Cl माइनस ऐसे लिखता हूँ मैं, और ऐसे एरो दे दे के ना 4-5 रिएक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको रट लीजिएगा। एक तो हो गया आपका CuBr2 HBr, ये हम लिख नहीं रहे हैं। अब HBr देंगे तो ये ब्रोमाइड होगा, अगर HCl देंगे तो क्लोराइड होगा। अगर इसको आयोडाइड करना है तो रिएजेंट अलग है, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड एंड I2, और ये हीट हीट करेंगे तो ये बनेगा PHI। अगर इसको फ्लोराइड करना है तो रिएजेंट अलग है, उस केस में आपको क्या करना है, HbF4 करके एक रिएजेंट है, उसमें हीट देंगे तो ये बनेगा PHF। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है कभी ऐसा दे दिया कि फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, एक नंबर पे दे देगा Cu2F2 एंड HF, तो आपको लगेगा अच्छा सैंडमैन में तो हम ऐसा देखे थे, तो आई विल यूज ऑप्ट फॉर दैट, तो आपका हो जाएगा गलत। तो क्योंकि ये आपको कुछ स्पेसिफिक चीज आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए एक तो हमने ये देखा है कि बेंजीन बनाने का तरीका H2O देके, और दूसरे और एक दो रिएजेंट है जहाँ पे आपको सीधा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। जैसे आपको इस केस में ना H3PO2 कहीं पे दिखेंगे, H3PO2 और हीट कर देगा, या फिर इथानॉल ETOH और हीट, इतना ही देता है। लेकिन होता क्या है ना, इसके साथ साथ थोड़ा सा मेटल भी यूज होता है, जैसे ट्रेस अमाउंट ऑफ कॉपर और ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन यूज होता है ये रिएजेंट के साथ। तो उसमें क्या बनेगा, उसमें भी आपका बनेगा PHH या कि बेंजीन। ठीक है, तो ये 3-4 तरीका है बेंजीन बनाने का सीधा डाइजेनियम क्लोराइड से। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपको दो दो रिएजेंट ऐसा है जो आपको बस दिखाना चाहता हूँ मैं। एक हो गया आपका, देखिए, इसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी जिंक HCl, ये अगर यूज करेंगे ना, तो ये आपको जो डाइजेनियम क्लोराइड है ये बनेगा फर्स्ट स्टेप में NH2 डॉट HCl, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, HCl रहेगा तो ये बेस है और ये एसिड है, दोनों साथ साथ जोड़ के रहता है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है तो यहीं पे रिएक्शन रोकेगा नहीं, नेक्स्ट इट विल फॉर्म NH2 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो ये आपका बन गया डाइजेनियम क्लोराइड से क्या, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से ये बन गया एनिलीन। ओके, तो एक तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। दूसरा देखिए, ये तो बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट अगर मान लीजिए थोड़ा सा माइल्ड कर दिया, थोड़ा सा माइल्ड कर देनी है, यानी क्या, मान लीजिए इसमें हम यूज करेंगे SnCl2HCl। अब ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये आपको ये एनिलीन तक लेके नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये आपको यहीं पे रोक देगा। ये क्या करेगा, ये आपको पीएच NH NH2 यहीं पे जाकर मामला रुक जाएगा। ठीक है ना, ये होगा आपका फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा सा रट लीजिएगा, क्योंकि ये जो रिएजेंट है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग रिएजेंट है। अब ये भी दे सकता है, कभी होगा दे दिया आपको ऐसे एक नंबर, ऐसे 2 नंबर, फिर आपको तिग्राम लगा कुछ और दे दिया, एक फिनाइल हाइड्रोजन के साथ आपको मान लीजिए एक कार्बोनिल ऐड कर दिया कोई, उसके बाद आपको वो क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट वो पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज के साथ में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो हो गया आपका पीएच N2 प्लस Cl ओके, डाइजेनियम क्लोराइड, इसके साथ अगर Cu2 प्लस और NaNO2, हाँ, ये रिएजेंट यूज करेंगे ना, तो ये भाई बनेगा सीधा नाइट्रोबेंजीन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रट्टा मारना है। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि ये पूछा है तो कुछ भी पूछ सकता है। ये आया मेरे दिमाग में, आपको बता दिया। बाकी हम ऐसे ऐसे जो भी मेरा याद आता जाएगा मैं आपको बस बताता जाऊंगा, आप सुनते जाइए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा आज फास्ट चलना है हमको, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर करना है, वो भी 1 घंटे के साथ। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, which among the following molecules on polymerization produce neoprene, ये है पूरा एनसीईआरटी से उठा के दिया है, ये हम डिस्कस करेंगे नहीं, ये आपको किताब खोल के कौन सा पेज से दिया है वो आपको दिखाएंगे, इट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 70,
एकदम सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी से उठा के दिया है। अगर ये दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आपको जितना भी केमिस्ट्री में नॉलेज हो आप इसको आंसर नहीं कर सकते। ओके, सो प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी अगेन। ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया ये स्टडी के पेपर में। नाउ आप देखिए, ये भी आपका 78 वाला भी हो गया। हम आएंगे आप देखिए 81 पे। ओके, सीधा क्वेश्चन। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें रहेगा बताने वाला। ओके, सी फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल। ये सिंपल इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एशियन एडिशन हुआ और हुआ कुछ नहीं। ओके, तो ये आपका बन गया एक कंपाउंड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट दे दिया कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 में हमको पता है कि कोई भी साइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं इसको, कोई भी साइनाइड कंपाउंड है, इसको H3O प्लस हीट करोगे, देन इट विल गिव RCOOH। दिस इज द प्रोडक्ट, ये आपको पता है। इसको अगर इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH हीट करोगे क्या बनेगा, RCOO माइनस, इसको H3O प्लस माइल्ड H3O प्लस दे दोगे तो बना आपका RCOOH। क्लियर, ये होता है। तो एक तो चीज हो गया कि ये जो साइनाइड है ये बनेगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग COOH। लेकिन भाई एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, कहीं पे भी मान लीजिए ये कॉन्जुगेशन बनने का चांस है। कहीं पे मान लीजिए ये आपको कार्बन है और भाई यहाँ पे है एक OH, इसको H प्लस से हीट करो, इसको NaOH से हीट करो, कुछ भी करो, यहाँ से वाटर निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये वाटर निकलने के बाद ये जो बनेगा ये हो जाएगा आपका क्या, एक कॉन्जुगेशन। ओके, ये कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल बनेगा, और कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल होता है बहुत स्टेबल है। तो एक थोड़ा सा आपको बस उसको क्या चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। जैसे हल्का सा एसिडिक या फिर हीट, कहीं कहीं केस में तो ऐसा भी होता है थोड़ा सा हीट कर दो, उधर से वाटर निकल जाता है। तो उस केस में भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कुछ भी मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। वो कभी कभी एल्डिहाइड हो, कि एसिड हो या फिर कार्बोनिल हो, कुछ भी हो वो बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो माइल्ड ने स्ट्रॉन्ग कंडीशन भी है उसको बनने का। तो डेफिनेटली आपको जो इधर देखिए, ये तो आपका OH, ये हो गया आपका साइनाइड। अब इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, अब ये साइनाइड का तो एसिड होना ही होना है, और साइनाइड जैसे एसिड बनेगा, और साइनाइड एसिड बनने के बाद मान लीजिए यहाँ पे OH है और यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, तो दोनों निकलने के बाद ऐसे निकलने का तरीका तो कुछ अलग है, लेकिन ऐसे निकल गया तो ये आपका बनेगा ये वाला अल्फाबेट। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको अगर फ्रैगमेंट करके लिखेंगे तो ये बना ना आपका अल्फा बीटा, इसके रिस्पेक्टिव अल्फा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बना आपका एक मस्त कॉन्जुगेशन। तो इसीलिए ये एलिमिनेशन हो जाता है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो आई थिंक ये भी आपका होगा क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। ओके, ये देखिए 89 एक लग रहा है इंटरेस्टिंग, कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन 89 एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्लिक स्पीसीज, द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑब्लिक स्पीसीज व्हिच ओबे हुकेल्स रूल। ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब ये व्हिच ओबेज हुकेल्स रूल, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है। अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हाउ मेनी आर एरोमेटिक, तो जो आंसर होता यहाँ पे व्हिच ऑफ द कंपाउंड ओबे हुकेल्स रूल, तो आंसर सेम ही होगा। ओके, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सीधा सीधा इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कितना है ये ढूंढना है। अब देखिए हुकेल्स रूल क्या बोलता है, बोलता 3-4 स्टेटमेंट है हुकेल्स रूल का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो हमको चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, वो ऐसा है कि द कंपाउंड व्हिच हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या हमको चाहिए। अब n कैन बी 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब देखिए n अगर 0 हुआ तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। ओके, आंसर विल बी 2। n अगर 1 हुआ तो कितना होगा, 6। n अगर 2 हुआ तो कितना होगा, 10। तो ये इतना ए नंबर ऑफ अगर है पाई इलेक्ट्रॉन है, और जो कि साइक्लिक है, एंड वो डिलोकलाइज होना पड़ेगा आपका थ्रू आउट द सिस्टम, देन उसको बोलेंगे एरोमेटिक। अब देख लीजिए सिंपल सा, ऑप्शन नंबर 1 चूज करिए। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 10 मतलब ये निकल टू 2 है साइक्लिक, सारे के सारे आपको पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर से आपको
घूमेगा, जो एकदम कॉन्जुगेटेड है सब सिस्टम, और n इक्वल टू 2 है, तो हो गया आपका एरोमेटिक। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक। अब ये देखिए यहाँ पे भी 2 4 एंड 2 6, मतलब n इक्वल टू 1 हो तो 6, और ये भी मस्त एकदम रेजोनेंस करेगा ऐसे। रेजोनेंस ऐसे होगा कि ये इधर पुश करेगा तो इधर जाएगा, फिर से ये इधर हिट करेगा तो इधर जाएगा, ऐसा करते पूरा घूमेगा सिस्टम में। ओके, तो ये भी हो गया। अब ये वाला ऑप्शन नंबर 3 देखिए। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या है, 2 एंड 2 4। 4 देखिए कहीं पे भी हमको मैच नहीं करता। n इक्वल टू 0 हुआ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 हुआ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 होता नहीं। एक्चुअली फॉरेन सिस्टम है, फॉरेन सिस्टम मतलब होता है एंटी एरोमेटिक। ओके, तो हम इसको काउंट करेंगे नहीं। तो हमारा हो गया अभी तक 1 2। और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे भी देखिए ये 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर दिस नेगेटिव चार्ज, तो 4 इलेक्ट्रॉन। सो सिमिलरली ये भी एंटी एरोमेटिक। और यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज आई विल नॉट कैलकुलेट इट एज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। लेकिन ये बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ओनली द होल सिस्टम इज प्लानर, एंड दिस पाई बॉन्ड विल मूव थ्रू आउट द सिस्टम। तो हम अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें से n इक्वल 0 है, तो ये आपका हो गया एरोमेटिक। ओके, तो इसको भी हम काउंट करेंगे एरोमेटिक पे, ठीक है ना। अब ये देखिए नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फोरन सिस्टम है, तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होगा 4 10, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 14। अब यहाँ पे देखिए ये निकल टू अगर 3 हुआ तो होगा 4 3 12 प्लस 2 मतलब 14, तो ये भी मैच कर रहा है, तो ये होगा हमारा एरोमेटिक। तो इसको भी हम एरोमेटिक करार दे देंगे। तो कितना बना 1 2 3 4, तो ये बन गया आपका आंसर। क्लियर। तो ये आपका होगा 89। अब देखिए ये 95 में मुझे एक मिला। ओके, देखिए इसको तो आपको मतलब पता ही है, अगर स्कूल जाएंगे तो प्रैक्टिकल में आपको कराता ही होगा कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड पहचानने का तरीका। पहले क्या करता है ना, प्रैक्टिकल में हमको पहले ढूंढना ये पड़ता है कि हमको एक कंपाउंड दिया जाता है अननोन सबस्टेट, और आपको चुनना पड़ता है एक इसमें कार्बोनिल है कि नहीं। तो कार्बोनिल तो ऐसे एज सच कार्बोनिल दो तरह का होता है, एक तो होगा एल्डिहाइड और एक हो गया आपको कीटोन, मतलब सॉरी कीटोन दो तरह का होता है, एक तो होगा एक कीटोन होगा और ये हो गया एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप दोनों। अब इसके साथ ना वो जो फिनाइल हाइड्रोजन आपको दिखाया पीएच एनएच NH2, इसमें 2,4-DNP करके एक रिएजेंट है, 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, वो दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। ये देखिए ये हो गया आपका NH NH2। ये 2 नंबर पे मतलब यहाँ पे एक है NO2 और यहाँ पे एक है NO2, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। अब ने अगर स्कूल मतलब जाते हो तो पता होगा ये 2,4-DNP यूज होता है। तो ये क्या करता है ना, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड मान लीजिए ये एसिड हो, ये सॉरी ये कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, इसके साथ रिएक्ट करके जो बनाता है वो है आपका ये। देखिए ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N NH, और ये आपका भाई आ गया यहाँ NO2 NO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये आपको प्रोडक्ट दे देगा। अब होता है ऐसा है कि यहाँ पे पुश करेगा, ये ऊपर जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है ना ये उधर से शिफ्ट हो जाता है फिर बाद में। तो -H++H+, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखा जाता है ऐसा, -H++H, और ये आपका बन गया N डबल बॉन्ड N, और ये हो गया आपका A NO2 NO2। अब देखिए इधर से इधर पूरा एकदम सिस्टम जो है मस्त एकदम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है ना, ये कॉन्जुगेशन के कारण ये देता है एक ऑरेंज टू रेड कलर। अरे ये ऑरेंज टू रेड कलर है ना, एक प्रेसिपिटेट देता है, और यही है आपका पहचान कि भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं। क्योंकि अगर बिना कार्बोनिल कंपाउंड में ना ये वाला रिएक्शन होगा नहीं, और इस टाइप का सिस्टम बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहचान कि कार्बोनिल कंपाउंड का। तो कार्बोनिल कंपाउंड तो मैंने क्या दिखाया, दोनों में है। एक तो हो गया ये आपका कीटोन में भी है, और ये एक हो गया ये एल्डिहाइड में भी है, इन दोनों में कार्बोनिल है। लेकिन स्पेसिफिकली हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला जो कार्बोनिल है जिसने आपको रेड या ऑरेंज प्रेसिपिटेट दिया है वो ये कीटोन से आया या फिर एल्डिहाइड से।
उसके लिए स्पेसिफिकली ये वाला जो टेस्ट है ना ये किया जाता है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। अब टॉलरेंस रिएजेंट में रिएक्शन क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के साइड में ना, टेस्ट ट्यूब के वॉल में आपका एक मस्त सिल्वर का प्रेसिपिटेट होता है। अब सिल्वर का प्रेसिपिटेट होना यानी क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिल्वर यूज किया ना, यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन है, देखिए ये जी प्लस है, ठीक है, ये जी प्लस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1। अब ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट हुआ मतलब मेटेलिक सिल्वर का प्रेसिपिटेट हुआ कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब का चारों ओर, और एकदम मिरर जैसा बन जाएगा, आपको चेहरा दिखेगा उसमें। अब ये सिल्वर का डिपोजिशन हुआ, उसका मतलब क्या, ये कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिला, अब इलेक्ट्रॉन मिला मतलब इसका रिडक्शन हुआ, अगर इसका रिडक्शन हुआ तो कोई ना कोई तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा ना। अब एक बात मुझे बस सिंपल से एक बात बताइए, अगर एक कीटोन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम कैसे यूज करते हैं, एक तो हो गया कि ऑक्सीजन अटैच होना, ठीक है ना, ऑक्सीजन अटैच हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन मानता है, या हाइड्रोजन अटैच हुआ तो उसको रिडक्शन मानते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे अगर सिल्वर रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। अब देखिए एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके हम क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं ना, ऑक्सीडाइज होके ये एसिड बनता है। लेकिन कीटो ये तो इतना आसानी से ऑक्सीडाइज होता नहीं है कि ये एसिड बनेगा, एसिड नहीं बन सकता। इसको अगर टफ कंडीशन में कुछ और रिएक्शन करेंगे ना तो ये इसको एस्टर बना सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं, इस कंडीशन में नहीं बना सकता। वो पेरोक्साइड यूज करके कुछ अलग है रिएक्शन, तो उसको बना सकता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड भाई आराम से एसिड बनेगा, ठीक है यार। ये बनेगा कब, जब इसको इस टॉलरेंस रिएजेंट यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कार्बोनिल तो अब इधर का, एक एल्डिहाइड इधर का, दोनों कार्बोनिल है। 2,4 डीएनपी के साथ भाई इधर भी एक बाइंड करेगा, इधर भी एक बाइंड करेगा, मस्त बाइंड करेगा, और आपको एकदम खतरनाक सा रेड कलर दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप ये वाला रिएजेंट यूज करोगे, टॉलरेंस रिएजेंट यूज करोगे, तो ये आपका रहेगा इंटैक्ट, ओके। और आपको जो होगा इस पोर्शन होगा आपको कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हुआ तो मतलब क्या होगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं, बाकी सब ऐसे दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई यहाँ पे OH माइनस है तो हो सकता है यहाँ पे ये OH बन जाए, या फिर ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, आपको ये लग सकता है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। ये सारे आपको मतलब क्या ही बोले, सीड्यूस करने के लिए दिया है कि आप बस ये है ट्रैप, आप पैर रखो और फंसो, ठीक है। बस ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए खतरा भी है थोड़ा सा, नॉलेज पूरा आपके पूरा ना हो तो आपका पैर फिसल जाएगा और आप बता नहीं पाओगे, आपको लगेगा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, फिर आंसर की के साथ मैच कराओगे ना, और तब देखोगे कि भाई कांड हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। यस, क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये देखिए यही मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे देता है, क्योंकि वो जो पेपर सेटर होता है ना उसका पास नॉलेज बहुत होता है, और नॉलेज बहुत है तो कुछ भी एक रिएक्शन देते देते उसको दिमाग में आ जाएगा और भाई अपना नॉलेज लगाना स्टार्ट कर देगा। और फिर अगर आपका नॉलेज उसका पार नहीं हुआ फिर तो आप फंस से जाओगे, ओके। सो बेसिक थिंग इज दैट कि आपका डिक्शनरी ऑफ रिएजेंट जितना अच्छा बिल्डअप होगा, मेरा हिसाब से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना तगड़ा होगा। हाँ थोड़ा सा आपका बस वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा यूज करना है एग्जाम हॉल में, बाकी वो हो जाएगा क्यों, लेकिन आपको रिएजेंट एंड मैकेनिज्म एंड फंडामेंटल क्लियर, ये तीनों चीज आपको ऑर्गेनिक के लिए चाहिए, बाकी ऐसे हो जाता है, ओके ठीक है। देखिए फिर से आपको घुमा फिरा के वही लिथियम एल्युमिनियम भाई हाइड्राइड वाला आ गया, जो कि मैंने बता दिया था, वो एमाइड वाला आंसर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए CH3CH हो ना, तो आपको क्या बताया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, इसको अल्कोहल बना देता है ना। तो CH3CH2OH, ये बन गया आपका अल्कोहल। अभी देखिए नेक्स्ट ये होगा आपका ये, अब H2S सुपर हीट, भाई H2S सुपर हीट में क्या देखा हमने थोड़ा सा पहले, H2S सुपर हीट, H2S सुपर हीट में क्या होता है, ये जो वाटर है ना, ये OH है, ये क्या करेगा, इसका साइड से कहीं से हाइड्रोजन लेके ये एलिमिनेट होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो वाटर रिमूव हो जाता है, तो वाटर अगर रिमूव हो गया तो ये बनेगा आपका क्या बोलते हैं इसको, इथिलीन, ओके। अब देखिए बी बन गया आपका इथिलीन। अब यह दिया क्या है, HBr। अब यहाँ पे अगर HBr आपने देंगे तो ये करेगा क्या, ये डबल बॉन्ड में क्या होगा, एडिशन होगा HBr का। तो यहाँ पे तो आपका चलिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक डबल बॉन्ड है, तो सिमेट्रिक डबल बॉन्ड है मतलब कोई झोल है नहीं, ये सीधा सीधा आप बता पाएंगे, कहीं भी कार्बन कार्बन पे आप क्या बोलेंगे, कार्बन पे आप Br ऐड करो, कहीं पे भी आप क्या बोलते हैं हाइड्रोजन ऐड करो, तो कोई इशू है नहीं क्योंकि सिमेट्रिक है। अब देखिए इसके बाद है क्या,
सोडियम ड्राइथर और ये हो गया आपका पीएचबीआर में मान लेता हूँ। ओके, पीएचबीआर और ये हो गया सोडियम ड्राइथर। गाइस इसका एक नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आप आपका टेक्स्ट बुक में एक बार देख लीजिएगा और देख के मुझे बताइएगा कि ये नेम रिएक्शन का नाम क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट देने वाला है ना, तो यहाँ पे देखिए सारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इसमें है, लेकिन आपको बस यही देखना है कि आपको आपको हो सकता है आपको लगे कि अरे भाई ये तो ठीक है, इस टाइप का तो हम पढ़े थे, यहाँ पे तो 3 प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों में से तीनों के तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है एक एक करके, लेकिन होता कॉम्बाइंडली 3 है। लेकिन उनमें से एक प्रोडक्ट होता है जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, वो मेजर वाला आपको इधर आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से बात है, जब मेटालिक सोडियम ड्राइथर ऐड करोगे ना, तो ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन दोनों ऐड हो जाएगा। तो कैसा CH3CH2Br प्लस मान लीजिए 2 सोडियम इधर लगा दिया, प्लस ये हो गया आपका BrPH। तो होता क्या, सोडियम ब्रोमाइड इधर से निकल गया और ये वाला जो है सिस्टम में आपका हो गया टच, CH3CH2PH। तो दिस इज द प्रोडक्ट। अभी कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस केस में जब रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, तो ये मेटालिक सोडियम क्या करेगा, ये पीएच, सॉरी यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि वो वाला वो एलिफेटिक वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। सो आई थिंक ये हो गया। अब ये 97 तो कल कर लिया हमने, अब 99 वाला देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है लेकिन है बहुत सिंपल। इसमें क्या देखिए, ये एक हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं, इथर बोलेंगे हम। ओके, अब ये है इथर क्लीवेज। अब इथर को क्लीवेज कैसे करेंगे, ऑलवेज वी यूज HI टू क्लीवेज दिस। अब अलग अलग कंडीशन है, कुछ और भी रीजेंट है जहाँ पे हम ये इथर को क्लीवेज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये पीएच CH2O और यहाँ पे देखिए। ओके, अब इसका मैकेनिज्म ढूंढेंगे पहले। अब HI में क्या होगा, पहले H प्लस होगा, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब बचा कौन, I माइनस। अब I माइनस की हीट करोगे, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हीट का साइन दिया हुआ है। तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये क्या करेगा, I माइनस SN2 रिएक्शन करेगा। ये वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, दिस इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, और ये है आपका सबस्ट्रेट। अब बताइए सबस्ट्रेट का कौन सा हिस्सा में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सो दैट एक पोर्शन क्या होगा इस सिस्टम से निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है यही एक बचा पोजीशन जहाँ पे I माइनस हिट करेगा। और ये वाला देखिए, इसे वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि आफ्टर प्रोटोनेशन ना, ये वाला पूरा सिस्टम जो है वेरी गुड लिविंग ग्रुप बन गया। तो यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बना PHCH2I प्लस इधर से आपको बना PHOH। बस ये और बी में बांट दीजिए इसको। अब देखिए कहाँ पे इस वाला कॉम्बिनेशन है, सी, दिस इज द, नो दिस इज नॉट द आंसर। कहाँ पे है देखिए, ये देखिए नंबर 3 आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यू गॉट द आंसर। बाकी ऐसा ही है, मतलब कभी भी क्लीवेज इस टाइप का इथर क्लीवेज है तो ऐसा किया जाएगा। मान लीजिए मेरा दिमाग में अभी एक आया आंसर, आपको पता था। हम्म, मान लीजिए ऐसा दिया आपको, वो और ये है आपका CH3, ठीक है ना। अब ये है HI। अब इस केस में आप हो जाओगे परेशान, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। I माइनस को मानना था कार्बन पे, रेस्ट ऑफ द थिंग निकल जाता। यहाँ पे तो ये sp2 कार्बन है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होता है, और ये sp3 कार्बन पे अटैक करेगा। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर मामला ऐसा दे दिया, तो ये तो बस थोड़ा सा फिर आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पे क्या होता है देखिए, होगा 2 ही प्रोडक्ट, लेकिन एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो वो पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा, फिर मेजर वाला आपको बोलेगा कौन सा कॉम्बिनेशन मेजर है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे भी सिंपल क्या होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये H प्लस टेकअप कर लिया, करने के बाद ये बना आपका CH3, ठीक है। नाउ दिस आयोडीन हैव 2 ऑप्शन। ओके, आइदर इट कैन अटैक हियर और इट कैन अटैक हियर। अब मुझे बताइए, ये होगा आपका SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन का एक सिंपल सा फंडा ये है कि सबस्ट्रेट ऑलवेज प्रेफर कर, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज प्रेफर करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज प्रेफर करेगा कि लेस हिंडर्ड पोजीशन। अब इन दोनों में से ये सबस्ट्रेट, ये रिएक्शन सेंटर और इस रिएक्शन सेंटर में से आप मुझे ये बताइए कौन सा सेंटर लेस हिंडर्ड है। डेफिनेटली ये वाला है ना, प्राइमरी कार्बन, ये लेस हिंडर्ड है। तो ये क्या करेगा, ये इधर मारेगा। ओके, it will attack this carbon, अरे it will attack this carbon, and this portion will, okay, eliminate from the system।
तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा? बनेगा आपका OH प्लस CH3I। अगर देखिए, अगर ये इस सेंटर पे अटैक करता, अगर मान लीजिए ये आयोडीन इस सेंटर पे अटैक करता, तो इधर इधर से न्यूक्लियोफाइल आपको निकल जाता सिस्टम से। अगर ये निकल जाता फिर क्या प्रोडक्ट होता? फिर आपको प्रोडक्ट होता I प्लस CH3OH। ओके, ये कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट होता। तो बनेगा तो दोनों, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, लेकिन क्या होगा, मान लीजिए इसका 80% बनेगा, इसका बना 20%। ठीक है। सो जो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा वो कॉम्बिनेशन पकड़ के हमको रिएक्शन का आंसर देना है। तो ये छोटा छोटा चीजें जो है आपको बस याद रखना पड़ेगा। अब बाकी आगे देखेंगे, जब कुछ सिचुएशन आएगा तो हमको बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि कोई इंटरेस्टिंग अगर आया। ठीक है। तो ये लगभग हो गया। अब देखिए, आपने तो शायद थंबनेल जो है इस वीडियो का देखा होगा। ठीक है। वो थंबनेल में क्या था, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था। और यहाँ पे मैंने वो थंबनेल इसलिए चूज किया था आज, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 पे ना ये एज बेर एडिशन था, तो मुझे लगा थोड़ा एज बेर एडिशन पे थोड़ा सा मैं आज चर्चा कर लेता हूँ। उससे पहले आई जस्ट वांट टू आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन व्हिच आई हैव आस्क्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, द क्वेश्चन इज दैट, एक तो ऐसा था शायद, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, एक आपका पिनाकोल पिनाकोल का ऐसा सब्स्ट्रेट मैंने दिया था OH उनमें से इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये आपको प्रोडक्ट बना के दिया था मैंने। ओके, ये प्रोडक्ट आपका मैं बना के दिया था, ऐसा था। नेक्स्ट मैंने रिएजेंट भी दे दिया था NaBH4 एक नंबर पे, और 2 नंबर पे दे दिया था H प्लस। देन आई आस्क्ड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा होगा, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा ना, इसको पहले दिस कार्बोनिल को, इट विल रिएक्ट ऑन दिस कार्बोनिल एंड रिड्यूस इट। अब ये रिड्यूस करेगा तो रिड्यूस करके बनाएगा क्या, OH बनाएगा। ओके, इट विल फॉर्म OH। एंड देन क्या होगा, ये जो OH है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये क्या होगा, OH2 प्लस होगा, ये सिस्टम से निकल जाएगा। निकल जाने के बाद ये बनेगा ऐसा, देखिए ये प्लस बन गया। उसके बाद ये जो रिंग है ना, ये इटसेल्फ स्ट्रेन में है, क्योंकि देखिए सी दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन, ऑल द कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड हाउ डू नो कि sp3 फॉर द sp3 हाइब्रिडाइजेशन each bond angle should be preferable, bond angle should be 109 degree and 28 minutes. Okay, this should be the preferable bond angle. But what is the angle of this? This angle is only 90 degree. So there is a 19 degree angle strain. So to eliminate this angle strain ना, this bond will jump over there. अगर ऐसा जंप करेगा तो वो कैसे क्या बनाएगा, this bond will expand। तो expand करेगा तो ऐसा दिखेगा कुछ। तो ये आपका 4 मेंबर रिंग से ना, ये भी बन जाएगा आपका 5 मेंबर रिंग। और इधर देखिए, इधर से खोल के गया है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में इधर से सिस्टम से निकल जाएगा, एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे टोटल, so this will be the final product. I think this is the B what I have asked in the previous question. Okay, next एक क्वेश्चन आपको और दिया था पिनाकोल रिएजेंट से रिलेटेड। एक ऐसा दिया था आपको कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये जो एग्जांपल है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। देखिए सेम थिंग, वहां पे क्या देखा था कि ऑल द कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, so its angle should be 190 degree 28 मिनट, लेकिन ये है ही नहीं, 90 डिग्री है, तो वो है एंगल स्टैंड। तो देखिए यहाँ पे भी सेम थिंग अप्लाई होता है, सेम रूल। यहाँ पे क्या है, वन एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेन है, और स्ट्रेन कितना है, लगभग 49 डिग्री, अप्रोक्स 49 डिग्री एंगल स्ट्रेन है। तो ये एंगल स्ट्रेन बहुत ही है, तो ये बहुत ही रिएक्ट, इसलिए ये सब्सट्रेट बहुत रिएक्टिव है। और थोड़ा सा इसको मौका मिला, कैसे भी ये क्या करेगा, सबसे पहले एंगल स्ट्रेन को रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस ना, ये जो प्रोटोनेशन इधर लोन पेयर से होने के बजाय ये होगा क्या, this lone pair push and this proton will attach with this single bond. So what will be the product now? This is the OH and this will be the, मान लीजिए ऐसे करके हम लिखेंगे तो आपको समझने में आसान नहीं होगा। ओके, और दिस विल बी द, ओके। नाउ क्या होगा, ये लोन पेयर जो है ये पुश करेगा एंड दिस विल माइग्रेट हियर एंड दिस विल मूव देयर।
तो अब ऐसे कैसे दिख रहे, देखिए सी, ये हो गया आपका 3 मेंबर रिंग। अगर एक कार्बोन अटैच होगा इसके साथ, तो ये बनेगा आपका 4 मेंबर रिंग। और क्या होगा, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन रिंग के साथ होगा, और ये पोर्शन जो है ऐसे इधर हो गया, तो ये बन गया 4 मेंबर रिंग। ओके, और यहाँ पे बनेगा आपका कार्बोनिल, और यहाँ पे देखिए एक OH बन गया, ये वाला पोर्शन OH बन गया, और उसी के साथ ये CH2, ये होगा CH3, तो CH2 CH3, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, दिस इज लिटिल बिट टफ है, ये आपका हो सकता है एग्जाम पे नहीं आया, आएगा नहीं, आई थिंक सो, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे आता है। तो क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो एक दो स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कि एडवांस नॉलेज है आपके पास, दैट्स व्हाई आई जस्ट नॉट इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो अब आते हैं हम थंबनेल पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है हमारा कि CH2 डबल बॉन्ड CH CF3। ओके, यहाँ पे क्या हमने पूछा कि इसमें HCl ऐड करेंगे तो कैसा होगा। हम ये भी पूछा आपको कि आपको तो मार्कोनिक रूल तो पता ही होगा। अब मार्कोनिक रूल पे क्या होता है ना, वहाँ पे बस सिंपल सा रूल, तो बस बहुत सिंपल होता है। सिंपल ऐसा है कि कोई भी अगर अनसिमेट्रिक, कोई भी डबल बॉन्ड अगर अनसिमेट्रिक हो इन द सेंस, यहाँ पे अगर मिरर रखे आपने, और मिरर के इस पोजीशन और इस पोजीशन में कोई मैच नहीं है, या फिर इसको मतलब थंब रूल पे अनसिमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, ऐसे कैसे सिमेट्री देखेंगे हम कि यहाँ पे CH2 मतलब इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ओके, तो ये होगा आपका अनसिमेट्री। अभी उस केस में क्या होता है ना, वो मार्कोनी का रूल ऐसा बताया गया कि ये जो मतलब HBr और HCl जो एडिशन करेंगे, तो इस एडिशन के केस में जो नेगेटिव पोर्शन है, यानी क्या, ये हैलाइड, ये पोर्शन उसी कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये दोनों कार्बन में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रच किसके साथ है, इसके साथ है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल, ये क्लोरीन जो है, ये इसको आप यहाँ पे अटैच होना चाहिए था, मतलब ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए था, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच ये होना चाहिए था। ये अगर होता तो हम इसको कहते हैं कि मार्कोनिकव रूल फॉलो कर रहा है। एक तो चीज और है, एंटी मार्कोनिकव रूल। ओके, ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकव रूल क्या है ना, इसका उल्टा है। तो उल्टा वो कैसे होता है कि वो बिन पैसों पारोक्साइड कुछ देता है, फिर पारोक्साइड के इफेक्ट बता के ऐसा ऐसा करके हम बता देता है। आप देखिए ये आंसर आप तभी सॉल्व कर पाएंगे, ये सवाल सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपका पास कोर नॉलेज हो। यानी क्या कोर नॉलेज, यानी आपके पास फंडामेंटल नॉलेज हो कि ये मार्कोनी का रूल बना कैसे। जैसे पिछला दिन मैंने बताया था कि ब्रेड रूल कैसा था, तो ऐसे ही मार्कोनी रूल्स मतलब वो कंक्लूजन पे कैसे आया कि व्हाई ही थिंक्स दैट द ओनली नेगेटिव पोर्शन विल ऐड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। बिकॉज उसने बहुत सारा स्टडी करके देखा कि ओके बेटा, ये जो मेकर जो है ना, ये टोटल एंटायरली डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट पे जो कार्बोकेटन बन रहा है उसका स्टेबिलिटी पे। अगर वो कार्बोकेटन स्टेबल है, तो वो ऐसे कार्बोकेटन फॉर्म करेगा, उसके साथ वो नेगेटिवली जो एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट वो अटैच होगा। चलिए हम उसका एक बार मार्कोनी का रूल का जो बेस है, वो मेकर जो हमने पहले देख लेते हैं, देन ये आसान हो जाएगा मामला। मान लीजिए एक मोस्ट सिंपल सा एंड जो मतलब किताब में जो एग्जांपल देता है, ये मान लीजिए ऐसा CH3। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, HBr ऐड करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले जो डबल बॉन्ड है ना, ये आपको H को पकड़ेगा और Br को सिस्टम से हटा देगा। तो ऐसा पकड़ने पकड़ने का दो चांस है, एक तो होगा ये डबल बॉन्ड से ना ऐसा पकड़ा, सो दैट ये बना आपका CH3 और CH प्लस और CH3, या फिर ऐसा हो सकता है ये इस साइड से प्रोटॉन को पकड़ेगा। अगर प्रोटॉन के साथ इस साइड से पकड़ेगा, मतलब मान लीजिए ये डबल बॉन्ड खोल के इधर से जा रहा है, तो उस केस में कैसे बनेगा, CH2 प्लस CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बोकेटन है, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटन, और ये जो कार्बोकेटन है ये होगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटन। अब बताइए कौन सा स्टेबल है। डेफिनेटली कल तो इसके बारे में काफी सारा चर्चा किया है हमने। तो ये 2 डिग्री वाला जो कार्बोकेटन है ये स्टेबल है। तो ये अगर स्टेबल है तो डेफिनेटली यही बनेगा ना, ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास दो ऑप्शन है बनने का। ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से ये 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है। अगर दोनों में से कुछ एक बन सकता है, तो डेफिनेटली जो अच्छा होगा उसके लिए वही बनेगा ना। तो इट विल गिव यू 2 डिग्री कार्बोकेटन। अब अगर ये बन गया, फिर Br के पास कुछ बचा ही नहीं,
एक बार कार्बोकेटायन बन गया तो इसको तो बस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस पोजीशन में अटैक करना ही करना है। तो इस केस में क्या होगा, इट विल अटैक ऑन दैट कार्बन एंड द प्रोडक्ट विल बी Br CH3। आप मार्कोनी का रूल लगाइए। यहाँ पे मार्कोनी का रूल क्या था कि ये HBr का नेगेटिव पोजीशन कौन सा है, ये वाला Br-। तो Br- कहाँ पे अटैच होना चाहिए, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ, जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड, जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और लगा कहाँ पे, वहीं पे लगा ना। तो ये आपका हो गया मार्कोनी का रूल। लेकिन मार्कोनी का जो रूल का ये आधार क्या था, आधार जो था ये है आपका कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल ना होता तो डेफिनेटली ये तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता ही नहीं और फिर Br इधर अटैक नहीं करता। तो ये था उसका आधार। आप देखिए सीन कुछ हमने जो दिया है आपको एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH ये दिया ना CF3। अब मान लीजिए यहाँ पे H+, ये जो H+ बना कहाँ से है ना, HBr को ऐसे, मतलब एसिड है ना, तो ऐसा बनेगा। ओके, अब देखिए ये इसके पास फिर से दो ऑप्शन है। ये ऐसा बन सकता है CH2 CF3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये ऐसे भी बन सकता है CH3 CH+ CF3। ओके, ये दो पोजीशन में कोई एक बनेगा। आप मुझे बताइए कौन सा बनेगा। अब ये हो गया आपका 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री। तो आपका मतलब आपको हो सकता है आपको लगा कि 2 डिग्री तो स्टेबल है, लेकिन भाई ओनली डिग्री काफी नहीं है। वो भी मैंने पहले वीडियो में बताया कि ओनली डिग्री इज नॉट इनफ, बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स व्हिच मे इंटरफेयर समटाइम। ओके, यहाँ पे देखिए अदर फैक्टर क्या है, CF3 है। अब फ्लोरीन है क्या चीज, फ्लोरीन है आपको हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटॉम। और हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटॉम यानी क्या, ये क्या मतलब हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का ज्यादा है तो है फ्लोरीन का। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के खतरनाक तरीके से ये खींचेगा अपने ओर। तो ये अगर खींचा तो ये बनेगा आपका डेल्टा माइनस चार्ज। ये अगर डेल्टा माइनस बना तो ये कार्बन पे एकदम हाईली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। अब देखिए ऑलरेडी ये भाई के पास हाईली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है, तो इसका नियरेस्ट नेबर जो है इसमें ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, टॉलर नहीं कर पाएगा। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज टॉलर नहीं कर पाया तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है, इंस्टेड इट्स ये हो गया कि दोनों की कंपेरेटिवली ये 2 डिग्री हो गया, वो 1 डिग्री है। आपको जो 2 डिग्री स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये एडजस्टमेंट में CH3 ग्रुप है जो कि हाईली इंटरफेयर कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज को होने से। तो ये भाई बनेगा ही नहीं। तो ये अगर नहीं बना तो बनेगा कौन, ये 1 डिग्री वाला, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा दूर है। अगर दोनों ही चॉइस है ना, इसका पास दो चॉइस है और एक चॉइस ऐसा है जो कि रिएक्शन ना करे, लेकिन रिएक्शन अगर करेगा तो दोनों में से एक तो बनना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या है, 1 डिग्री उसको बनना ही बनना है। अगर मान लीजिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, उसके बाद ब्रोमीन के पास तो ऑप्शन बचा ही नहीं ना भाई, ये तो मरेगा यहाँ पे। इट विल अटैक इन दैट कार्बन ओनली। तो ये अगर इस कार्बन पे अटैक किया तो यहाँ पे आपको बन गया ये प्रोडक्ट। ओके, CF3। नाउ से यहाँ पे देखिए कहाँ पे लगा, कुछ कहीं पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये अटैच होना चाहिए था इस कार्बन पे, लेकिन ये लग रहा है कहाँ पे, इस कार्बन पे। तो अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल के साथ आप जाओगे, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है नहीं, तो यू विल बी इन द ट्रैप। और आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन को तो आप छोड़ोगे नहीं, आप आंसर करके आओगे, इवन घर आके काउंट भी करोगे कि हाँ इतना मैंने सही किया, और आप फिर गए कम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या दिया था आपको, ये दिस टाइप का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। ये साइक्लोब्यूटीन मतलब जो भी है। अब मान लीजिए यहाँ पे H+ लगा, यहाँ पे H+ देंगे तो इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक होगा टर्मिनल पे H+ ऐड हो सकता है, तो टर्मिनल पे हुआ तो आपको A बनेगा। अगर मान लीजिए रिंग पे H+ ऐड हुआ तो आपको बनेगा ऐसा। आप सोच के बताइए इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। अगर जो स्टेबल होगा वही बनेगा। इसके पास दो पॉसिबिलिटीज था। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये sp2 है और sp2 है, तो इसका sp2 का बॉन्ड एंगल, आइडियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ओके, ये 120 डिग्री है, लेकिन जैसे प्रोटोनेशन हो जाएगा ये फिर से आपका इसका कुछ चेंज हो रहा है। अगर प्रोटोनेशन यहाँ पे हुआ तो, प्रोटोनेशन अगर टर्मिनल पे हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये भी sp2 है, इसका भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ओके, प्रोटोनेशन पे कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेंथ देखिए 120 डिग्री, 20 डिग्री, लेकिन ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री हो इस कार्बन का रिक्वायर बॉन्ड एंगल, लेकिन ये दिस टाइप ये बॉन्ड एंगल है आपका 90 डिग्री। तो लगभग कितना, अराउंड 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी सेम 30 डिग्री एंगल स्ट्रेंथ रह रहा है। ओके, इंस्टेड देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटन बन रहा है
इस सब स्टेट पे जो इस ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बोकेटन बन रहा है ये है 3 डिग्री कार्बोकेटन, और यहाँ पे जो कार्बोकेटन बन रहा है ये है 1 डिग्री कार्बोकेटन। लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, अगर इस कार्बन पे अगर प्रोटोनेशन हुआ और यहाँ पे कार्बोकेटन बना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपके sp3। sp3 यानी का बॉन्ड एंगल, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। उसका मतलब एंगल स्ट्रेन विल डिक्रीज। अब एंगल स्ट्रेन कितना है, तो इसका बॉन्ड एंगल है आपका 90 डिग्री और बना कितना 109 डिग्री 28 मिनट, तो आपका ऑलमोस्ट 19 डिग्री का एंगल स्ट्रेन। पहले क्या था 30 डिग्री, अब ये बना कितना, एंगल स्ट्रेन कम होकर कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। तो ये यहाँ पे देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस इज ए 1 डिग्री कार्बोकेटन, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंगल स्ट्रेन ना यही वाला फॉर्म करेगा। अगर एक बार मान लीजिए ये कार्बोकेटन फॉर्म कर गया, तो फिर ब्रोमाइड के पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, उसको तो डेफिनेटली फिर क्या करना है, वहां पे अटैक करना है ना। तो ये वाला कार्बोकेटन मान लीजिए बना, और फिर ये देखिए Br माइनस, तो यहाँ पे अटैक करेगा एंड दिस विल फॉर्म Br। सो दिस इज द प्रोडक्ट, ओके। लेकिन आप वो फिर धोखा खा सकते हैं कि 1 डिग्री 3 डिग्री के चक्कर में कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटन, सो दिस कार्बोकेटन विल फॉर्म एंड द प्रोडक्ट विल बी दिस, ओके। ये ऐसा प्रोडक्ट आपका मन में आ सकता है अगर आपको ये वाला फैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये होगा नहीं, ओके। दिस इज द प्रोडक्ट। अब देखिए एक तीसरा क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है ना, जो साइक्लोहेक्सेन वाला। अब उसको एक बार देख लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अभी ये देखिए, ये जो कार्बन है ये है sp2। अब sp2 मतलब 120 डिग्री, ओके। अब ये जो है ना ये होता है 112 डिग्री के आसपास साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन 112 नहीं, ये 120 होता है, सॉरी। वो साइक्लो पेंटेन में होता है आपका 112 के आसपास, ये 120। मतलब एंगल स्ट्रेन बिल्कुल है नहीं। अगर एंगल स्ट्रेन नहीं है तो फिर इसका भी दो पॉसिबिलिटीज, एक तो हो गया आपका CH2 प्लस, यहीं पे पकड़ा हाइड्रोजन, और एक हो गया आपका अगर टर्मिनल पे हाइड्रोजन पकड़ा तो यहीं पे हो गया प्लस। आप सोच के बताइए, यहाँ पे अगर एंगल स्ट्रेन का मामला है नहीं, तो कौन सा मामला रोल प्ले करेगा, वो डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं कार्बोकेटन का रोल प्ले करेगा। यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, तो डेफिनेटली 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। अगर 3 डिग्री मोर स्टेबल हुआ तो यही कार्बोकेटन बनेगा, ये वाला बनेगा नहीं, ये वाला बनेगा। और ये अगर बनेगा तो ब्रोमीन कहाँ पे अटैक करेगा फिर, bromine will attack in that carbocation and the product will be this CH3, okay। So this is the final मतलब आंसर हो गया आपका जो थंबनेल में दिया होता है उसका। लेकिन आज फिर भी मैं एक आपको सवाल देना चाहता हूँ, सो दैट योर ब्रेन विल वर्क, यू नो। आप जब सोचेंगे रात को कहीं कभी भी कि रिएक्शन क्या होगा, सिंपल है रिएक्शन, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एक रिएजेंट ऐसा है, मतलब कोई भी अल्कली हैलाइड है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना, सिंपल सा अल्कली हैलाइड है। RI में पकड़ लेता हूँ, चलिए इसको मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ। स्पेसिफिक ऐसा है कि मान लीजिए CH3 CH2I, ओके। आप इसमें से आपको दो चीजें बनाना है, एक है CH3 CH2CN, और एक बनाना है आपको CH3 CH2NC, ओके। साइनाइड या आइसोसाइनाइड। आप ये रिएजेंट ए और बी, आप बस मुझे कल आप बताइएगा मुझे कि ए का रिएजेंट क्या होगा, बी का रिएजेंट क्या होगा, ठीक है ना। ये होगा आपका होमवर्क, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, दैट विल गिव मी द इंस्पिरेशन फॉर फाइंडिंग आउट some new example from somewhere, okay। Thank you very much for watching this।